है मिसेस अलकाशील। मिसेस अलकाशील बहुत अच्छी वॉलंटियर है, वो अवेयरनेस टॉक भी देती है, अस्पताल में इमोशनल सपोर्ट भी देती हैं, ट्रेन क्लासिकल सिंगर और डांसर दोनों है, और वो ट्रेन प्राणिक हीलर भी हैं। और उनका कहना है जो टूटा उसका गम नहीं, ये भी ब्रेस्ट कैंसर उसका गम नहीं, पाया वो भी कम नहीं। तो आइए आज हम इनके नृत्य कला का नमूना देखते हैं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। अलकाशील जी। ठीक है, मेरे को क्या है? That was really good. Mute. You have to unmute yourself. Rekha, only Rekha, unmute yourself. Rekha, you're muted. No, I am not. Can you hear me? Yes. Okay, thank you. So now I would like to repeat कि जो चीज मांग के मिले वो मन्नत है, जो चाहत कर मिले वो चाहत है, और जो पास हो वो अमानत है। लेकिन रेणुका जैसी कोलीग और गाइड मिले तो ये तो हमारी बड़ी अच्छी किस्मत है। ज्योत्सना गोविल जी के साथ साथ रेणुका जी में भी बहुत सारे गुण हैं, फिर भी वो बहुत ग्राउंडेड और रियलिस्टिक हैं, और हमारी गाइडिंग फोर्स है दोनों, हमारी वाइस चेयरपर्सन मिसेस ज्योत्सना गोविल और हमारी ऑनररी सेक्रेटरी मिसेस रेणुका प्रसाद जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी रेणुका जी से कि वो हमारी चीफ गेस्ट मिसेस ताहिरा कश्यप, जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए वक्त निकाला है, हम उनका जितना धन्यवाद करें, और हमारे दूसरे पैनलिस्ट डॉक्टर देव एंड डॉक्टर कंचन कौर, और हमारे पार्टिसिपेंट जो भी हमारे हमसे मिलने सेमिनार पे आए हैं, सब हमारे लिए स्पेशल गेस्ट हैं। इनका धन्यवाद करें और बताएं कि इंडियन कैंसर सोसाइटी और कैंसर सहयोग कैसे मरीजों की मदद करते हैं। थैंक यू रेणुका जी, सबसे निवेदन है। Good evening to everyone. A very warm welcome to all of you. We have been really overwhelmed with the numbers that we got, and let me be very honest with you, this is the first time that we are having a webinar of this, and that is why it's becoming a little, it's somehow taking the first baby steps. We are learning and we learn with our mistakes, and I'm sure the following 2 seminars will be improved upon and be much better than what is happening today. But I would just make one personal request to everybody here, that just keep your screens on mute so that there's not too much of a noise. Especially it's true with the ones who've got the phones on. They talk and they don't realize that it's being broadcast to everyone, which is not very pleasant. Anyway, now let me do my duty, and first and foremost, welcome all our guests here today. Our chief guest, Tahira ji, who's really taking time out. Please just mute yourselves. And then, of course, our 2 doctors, Dr. Deo and Dr. Kanchan, who are both here with us today. Besides that, we also have somebody from Novartis coming in here, and who's going to be talking about the advanced breast cancer. Then we also have 2 survivor speaks here. There's going to be Gayatri, who I've seen here, and there's Mr. Riazuddin, whom I'm afraid I've not yet seen, but I hope he's here, because he would need to speak and be here, and we had quite a time trying to get him because he's connecting from Saudi Arabia. So, connections can be quite poor in Canada. And everybody here, I'm seeing a lot of faces whom I've known for a very long time, and one is meeting up and catching up with them again here today. Impossible to take everyone's names, but everyone. Rashmi, I can hear you talking. Your voice is very, we know that voice. So please just don't talk, mute yourselves. You're not muted also. So, ladies and gentlemen, let me just tell you about our ICU, please.
Our first and foremost activity is awareness, followed by screening. And when we talk of awareness for us means going anywhere. It could mean an institution, it could mean a corporate office, the schools and colleges, anywhere, the bus, some buses, anywhere. We love to go there and be able to tell people about cancer, about very fascinating. Somebody is still talking and is refusing to stop talking. Ravinder ji, please mute. Ravinder ji, please mute. Anyway, I'll carry on. I think I have enough voice to carry on. So, unfortunately, COVID came in and we had to look for something else. Because all our Renuka, you're muted. Renuka, you're muted. You have to unmute yourself. Oh no, he muted me just now. I think he muted everyone and muted me in Okay, good. Now. Thanks for telling me. Thanks for telling me. Welcome. And it, like they say, in every calamity, there is something that we do gain and we do find some opportunity. And for us, it is the digital world that has come to us as an opportunity. So we are now conducting most of our awareness talks through this medium. And the webinars is the main way in which we have started. We are doing it as a part of our annual seminar. An annual seminar is held every year in September. Cancer Sahyog, the emotional support group, organizes it. And it's held and basically to try and raise funds for patient support. And we support a number of patients with their medical treatment through the funds that we collect over this main fundraising effort of ours. To tell you, last year we adopted 110 patients and we spent over 65 lakhs. This year, I hope with all your efforts and all your help that you all put in, we will be able to adopt at least 50 patients, at least 50% of them. So we really want you to please reach out to us with whatever donations you can give us, so that it's the little things that pile up. As you know, बूंद बूंद से मटका भरता है, सागर भरता है, तो ऐसे ही हमारा भी मटका भर सकता है. Let me tell you, our screening activities are also at a halt these days, but the screening center, the fixed address at Barber Road, is still functioning. And all of you are welcome to go there and get yourself screened. In fact, this is one opportunity that we are giving you free of cost. All those who have attended this webinar will be sent a link whereby they can take that and go to the center and get themselves screened. Then coming on to basically our rehabilitation center, which is in Prashanti, where we provide the breast cancer patients with bras and prostheses and the lymphopress arm, where the women come in and, the drainage is done for the arm for them there. And all these services are basically free of cost or at a very, very nominal rate. We are also providing silicone breast prostheses out there, which is imported. And it's a very, very welcome one for everyone who's wanting to have a silicone one without making a dent in their pockets. Besides this, I must let you also know that we have 2 more webinars coming up after this. Today is a Wednesday. There's another one coming up on the 23rd, which deals with head and neck and lung cancers and the environment, how it affects it. And followed by another webinar, which is going to be on the 30th, another Wednesday, which deals with basically the gynec cancers. And it's also going to be, like all these 3 series are a fundraiser thing for us. And just for your information, if anybody around you is wanting to also see this, we are now streaming live on Facebook also. Without taking any more time, I'll now hand you over to our Vice Chairman, Jyotsna Govil, who I have seen is here. She is currently in UK, and this is the first time that she has left us to do this all on our own. And I hope, Jyotsna, under your training that we have all received, that we are coming up to your expectations. So a few words from you, please.
of encouragement to everyone around here. Jyotsna, where are you? I'm here, but I'm being muted from, can you hear me? Yes, yes, we can. So it's good afternoon here, good evening to you there. It's a pleasure to join up again. I was feeling quite left out, frankly, of all the excitement of planning and getting things ready. Renuka has already told you about all the work that ICS is doing today. So I will take you back about 70 years when ICS was first founded in 1951. Please remember the date. It was just 4 years after independence that ICS began and opened its doors, thanks to a really visionary surgeon at Tata Memorial Hospital, Dr. D.J. Jasawala. He realized that no matter how much surgery he did, things would not get better unless people had the awareness of cancer and went for early screening so that there was early detection of cancer. We have a lot to live up to with people like him, people like our founder in Delhi, Mr. K.K. Mehta, who till his dying day, I think, could think ICS first and everyone else later. So it is a little reminder to all my colleagues in ICS. I'm very, very proud of what you have done and of how you are presenting everything. But we are lambe race ke ghode. We are not going to pack up because one or other of us is out of the country or out of action for whatever reason. So everybody pulls together and we work even harder to ensure that there are no gaps in our services. I think that we have not faltered. Renuka has already told you how we have picked up on the digital world and how we are using tech to take our services forward, whether it is internship for young students, whether it is training in social media, for which all of us also frankly need very badly, all the various activities that we are taking up. So this set of webinars where you see all our volunteers in full force is a story of us and a story of now. But our focus is always the fact that it is you, the general public, and you, the people who are coming to us for information or for support of any kind, you will not find us wanting. God bless you all. I'm looking forward to going forward. Rekha, thank you. Thank you, Renu. Thank you, Jyotsna. So Rekha, go ahead. You're muted. Rekha, you're muted. You're muted. Muted, muted. Unmute, unmute. Rekha, unmute yourself ऊपर से. रेखा, हाँ, ऊपर से अनम्यूट करो अपने आप को बेटे, ऊपर से. आवाज नहीं आ रही रेखा. Anuj, आप जाके रेखा के पास बैठो. She's muted still. Rekha is muted. Colonel Tomar, Rekha is muted. हाँ, ठीक है. नहीं ठीक है. नहीं ठीक हुआ ना अभी भी. Anuj. Now, can you hear me now? Yes. Yes. Yeah. Thank you. And sorry for the interruption. अब जो इसका इंतजार बहुत लोगों को है कि वो ताहिरा जी से बात करना चाहते हैं, उनसे रूबरू होना चाहते हैं, तो ताहिरा कश्यप जी से कहूंगी कि ख्वाब टूटते हैं मगर हौसले तो जिंदा हैं, हमसे तो मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं, मुश्किलें भी इनके सामने खड़ी नहीं हो पाती,
ये न केवल एक मशहूर फिल्म स्टार की वाइफ हैं, बल्कि अपने आप में इनका बड़ा मशहूर व्यक्तित्व है। ये बहुत ही फेमस राइटर और फिल्म मेकर हैं, और ये अपने ब्रांड की कहानियां और मैसेजेस सोशल मीडिया पे डालती हैं और औरतों की हौसला अफजाई करती हैं, और ये वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। और इनका लक्ष्य ये है कि सब औरतें जो हैं अपने आप को प्यार करना सीखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा बनाएं, और हर औरत समाज में एक सकारात्मक सोच ला सकती है, ऐसा इनका विश्वास है। और ताहिरा जी की किताब द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमन बहुत ही प्रसिद्ध हुई है, और इनकी शॉर्ट स्टोरीज की जो किताब है, कलेक्शन है, सोल्ड आउट, SOULED, वो भी बहुत चर्चित है। अब मैं चाहूंगी कि ताहिरा जी अपने बारे में कुछ बताएं। ताहिरा जी, अगर आप स्क्रीन पे आए तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताहिरा जी, ताहिरा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? ताहिरा जी, आप खुद को अनम्यूट करें। ताहिरा जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच रेखा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, एंड सबसे अच्छी बात ये है कि सब ट्राई कर रहे हैं। ये न्यू कॉन्सेप्ट है वेबिनार सबके लिए, एंड आई कैन सी एवरीबडी इज अबाउट 40 or 50. Is such an adorable sight, and I was smiling all throughout, looking at such wonderful women trying to make this session happen. Goes on to show the resilience that we all have as women. So hats off to all of you for doing this and sort of enabling yourselves to learn new modes of technology. So please Rekha ji, please ask me whatever you want. सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपसे पूछने से पहले मैं जनता से कह दूं, अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में डाल दें, क्योंकि जब मेरे सवाल खत्म होंगे तो आपके सवाल रंजीत जी पूछेंगी। रंजीत जी, आप सवालों के साथ तैयार रहिएगा। तो ताहिरा जी, मेरा पहला सवाल है कि ऐसा क्या था या कौन था जिसने आपको इतना पॉजिटिव बना दिया? लोग हैरान होते हैं कि आप इतना सब अनुभव करके इतनी पॉजिटिव हैं, तो क्या बात थी, क्या भावना थी, कौन लोग थे जिन्होंने आपको इतना पॉजिटिव बनाया? आई थिंक सबकी ज़िंदगी में बहुत जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, एंड फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग जिनको उनका सपोर्ट मिले। बट आई फील द सपोर्ट एंड योर एंकर हैज़ टू बी यू योरसेल्फ। आई थिंक हमें अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वी नीड टू रियली feel that we ourselves are responsible for our happiness, and once we start giving that much of importance to ourselves, you'll see that things in the universe also fall in place. Everybody else gets aligned to that, and you are surrounded with a lot of love and support, but it has to begin with you valuing yourself. And it's not something that came very easy to me, very honestly speaking. Like anyone in their 20s or as a teenager, you have a whole lot of complexes, and it's just not limited to you being in 20s. I think women across all strata, all ages do have a couple of complexes, but it's to once you let go of those complexes, I feel you start loving yourself. For some people it comes very easy, they love themselves, it comes very easy to them, but few people have to work towards it. Like me, I work towards it. Thank you. And also we want to know what has been the impact of your experience as a cancer patient and survivor on your personal life and on your life as a celebrity? It's like any other challenge, I feel. It's how you take up, what you give yourself to the challenge. I mean to say, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई challenge आता है, चाहे financial हो, चाहे personal हो, चाहे marital हो. In my case, it was health. Once you approach life with the perspective of मुझे
ये चीज़ कुछ सिखाने आई है, कुछ लेनी नहीं आई मुझसे। तो अगर हम वैसा एक नज़रिया रखें तो कोई भी ऑब्स्टिकल या कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। एंड ये नज़रिया मैं हर एक प्रॉब्लम की तरफ रखती हूँ। वेरी गुड। आखिर मैम, क्योंकि समय की कमी है तो बहुत ज़्यादा सवाल ना पूछ के एक सवाल ज़रूर आपसे कहूँगी कि आप पूरे समाज की महिला, चाहे वो कैंसर सर्वाइवर हो या ना हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं वही कह रही थी मैं यही बोलना चाहती थी पहले भी, और कि टू लव योरसेल्फ, टू हैव utmost respect for yourself. Nobody deserves more love and respect than you yourself. That doesn't mean you become a narcissist और अपने बारे में अपने गुण गाते रहो, but it really comes from a place of being kind to your own self. And I feel as women we really need to learn that. Many generations have gone by where women have been suppressed, and somewhere that has stayed in the DNA. तभी हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, कभी पेरेंट टीचर मीटिंग, कभी ऑफिस की मीटिंग, कभी किचन में खाना, हर चीज़ को अपने से ज़्यादा तवज्जो और इम्पोर्टेंस देते हैं। तो एक ये सीख है, मेरे लिए थी, और मैंने भी इसके प्रति अपने आप को वर्क करा है। लॉट ऑफ पीपल, लाइक आई सेड, lot of women, they love themselves, lot of women need to love themselves. I was in the category where I worked towards loving myself. So I feel in either category, in whichever way you are, the important thing is to start having respect and love for your own self. थैंक यू। जब ताहिरा जी के पास क्योंकि समय की कमी है, ये चाह रही थी कि मैं इनको कहीं और कमिटमेंट है, सवालों के जवाब देने का वक्त ना होने की वजह से हम चाहेंगे आप अपने सवाल ज़रूर भेजें। हम ताहिरा जी को पोस्ट कर देंगे सवाल और उनके जवाब उनसे लेके आपको ज़रूर देंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर देव के पास भी टाइम कम है, जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है, तो इसके साथ ही मैं रंजीत से कहूँगी कि क्वेश्चन संभाल के रखें। तो ताहिरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहते तो थे आप अंत तक रहते हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इससे पहले कि मैं डॉक्टर देव हैं क्या, अगर मैं उनको सुनना चाहूँ तो? डॉक्टर देव, आर यू देयर? ही हैज नॉट कम येट। हेलो डॉक्टर देव से बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहूंगी कि हमारा जो एनुअल सेमिनार होता है वो एक फंड रेजर भी होता है, और हम लोग इंडियन कैंसर सोसाइटी की शाखा कैंसर सहयोग हर साल एक सेमिनार करती है। इस साल हम वर्चुअल सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें हम कैंसर के एक मुद्दे पर तो चर्चा करते हैं, ज्ञान भी बढ़ाते हैं, मगर इसके साथ साथ हम फंड भी रेज करते हैं। जैसे रेणुका जी ने, ज्योत्सना जी ने बताया कि हम बहुत से मरीजों की दवाइयों में, ब्रा प्रोस्थेसिस में और कई तरह से मदद करते हैं, और पैसा हर चीज के लिए जरूरी है। अभी आपको कन्ना तोमर स्क्रीन पे बैंक के डिटेल्स दिखाएंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी बैंक डिटेल्स आपके सामने आएंगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और दिल खोलकर दान करें। आपके दान की मदद से ही हम लोगों की मदद कर पाएंगे, और जो गतिविधियां, एक्टिविटीज रेणुका जी ने और ज्योत्सना जी ने बताई हैं, वो तभी आगे चल पाएंगी। और हमारे डोनर्स हैं, ये डोनर्स के नाम हैं जो हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, और इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल से उनका धन्यवाद करता है। अगर डॉक्टर देव हैं तो प्लीज अपनी प्रेजेंस बताइए। डॉक्टर देव, आर यू देयर? डॉक्टर देव, आर यू देयर? आई थिंक ही इज नॉट देयर। रियाजुद्दीन जी, आप आ गए क्या? रियाजुद्दीन जी भी नहीं आए लगता है। तो हम जब वो आएंगे तो उनको मिला लेंगे। तो मैं डॉक्टर कंचन कौर से मुखातिब होना चाहूंगी, हालांकि उनका हमने बाद में रखा था, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर का क्रम है, अर्ली स्टेज, उसके बाद जो है कमिंग टू मेटास्टेटिक एंड देन द इंटरनेशनल सिनेरियो। तो अब मैं डॉक्टर कंचन कौर के बारे में बात करना चाहूंगी। ये बहुत ही अच्छी और प्यारी दोस्त है इंडियन कैंसर सोसाइटी की, और एक बार हम उन्हें कहते हैं तो वो हमेशा हमारी मदद के लिए हर तरीके से आती हैं, और बहुत करीबी हैं इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ।
और डॉक्टर कंचन कौर स्पेशलिस्ट हैं, ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन है। आजकल वो डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्जरी में है मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव में। और उनके लिए उनकी इतनी क्वालिटीज हैं, अगर मैं यहाँ उनकी क्वालिफिकेशन बताने लगूं कि वो जीएमसी जम्मू से वो पढ़ी हुई हैं और उन्होंने मास्टर्स इन सर्जरी करी है वहीं से, और गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, हमेशा उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है और मेरिटोरियस अवार्ड मिले हैं उनको, और उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और बहुत से लोग नेशनली इंटरनेशनली उनके पास आते हैं और बहुत पैशनेट हैं कि वो औरतों के लिए, खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर की औरतों के लिए वो बहुत काम करें, और वो जगह जगह जागरूकता फैलाती हैं और कोशिश करती हैं ज्यादा से ज्यादा औरतें अर्ली स्टेज पे कैंसर को डिटेक्ट करें और कैंसर पर विजय पाएं और उनको उनका जो कैंसर है वो बिगड़े नहीं। लेकिन फिर भी चाहे इसे आयरनी कहो, लेकिन आज वो फिर भी मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगी, तो क्योंकि वो बहुत ही आशावादी हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। कहती हैं बुझी हुई शम्मा जल सकती है, तूफानों से कश्ती गुजर सकती है। बुझी हुई शम्मा जल सकती है, तूफानों से कश्ती गुजर सकती है। जिंदगी में कभी मायूस ना होना मेरे दोस्त, ये तकदीर है, कभी भी बदल सकती है। तो डॉक्टर कंचन कौर कभी भी तकदीर बदल सकती हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली ब्रेस्ट कैंसर कैसे चेंज होता है उसके बारे में हमें बताएं। डॉक्टर कंचन कौर। Namaskar, good evening to everyone. Thank you so much to all the lovely ladies of Indian Cancer Society. मुझे ऐसा लगता है मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया है कि मुझे इतनी प्यारी लेडीज के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताने का और कुछ काम करने का समय मिलता है। ज्योत्सना जी फ्रॉम यूके, रेणुका जी, रेखा जी, थैंक यू सो मच। एंड रेखा जी, आपकी इंट्रोडक्शन और आपकी कविता ऐसा मूड सेट करती है कि माहौल में एक अलग ही एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म आती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इट इज अ लिटिल सैड बिकॉज माय पैशन इज दैट वुमेन शुड बी डिटेक्टेड अर्ली विद ब्रेस्ट कैंसर, और इट्स सैड कि मैं मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर और एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रही हूँ, बट वही इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी कंट्री में दैट इज द सैड सिनेरियो कि हमारी कंट्री में ब्रेस्ट कैंसर लेट पकड़ा जाता है, और वो इसलिए कि सबसे बड़ी बात यही है कि अवेयरनेस नहीं है। और इंडियन कैंसर सोसाइटी इतना डट के इसके लिए काम करती है, एंड टुडे इज अगेन वन ऑफ दीज ब्यूटीफुल सेशंस। इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन and then I can start my presentation. Am I being able to share? Please let me know if you can see. Can everybody see this? रेणुका जी दिख रहा है? Okay, so बात है गुलाबी चर्चे की, और गुलाब का रंग, पिंक कलर एक बहुत ही सुंदर कलर है, और इसीलिए शायद ब्रेस्ट कैंसर को इसके साथ लिंक किया जाता है। और वास्तविकता में सब लेडीज की लाइफ में ये पिंक जो है ये गुलाब और सुंदरता के ही रूप में आना चाहिए, कैंसर के वो पिंक रिबन के रूप में नहीं आना चाहिए। एंड होपफुली इस सेशन के बाद बहुत सी लेडीज मोटिवेट होंगी कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। जैसे कि ताहिरा जी भी कह रही थी, वी नीड टू लर्न टू लव आवरसेल्व्स फर्स्ट, एंड द मोमेंट वुमेन लर्न टू लव देमसेल्व्स, डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम हम लेट डिटेक्शन की देखते हैं वो कभी भी नहीं होगी। सो गोइंग ऑन टू, मैं डराने नहीं आई, मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देती हूँ, मैं डराने नहीं आई, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट अगर कभी भी किसी को ब्रेस्ट में कोई भी सिम्टम होता है, तो जब तक आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे और ये प्रूव नहीं करेंगे कि ये कैंसर नहीं है, तब तक हम लोग इस कैंसर की जंग को नहीं जीत सकते। बहुत बार क्या होता है, जो हम रोज, एंड मोस्ट ऑफ अस क्लिनिशियंस विल टेल यू, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट विल टेल यू, कि लेडीज आती हैं और बताती हैं, डॉक्टर साहब ये गांठ 1 साल से है, आई हैव बीन फीलिंग दिस लंप फॉर अ ईयर, इट डज नॉट हर्ट सो आई थॉट इट इज नथिंग, कि मुझे दर्द नहीं हुई तो मुझे लगा ये कुछ भी नहीं है, पर अब ये बढ़ गया है तो मुझे लगा दिखा लेना चाहिए। तो पहले तो हम अपने मेंटल ब्लॉक के साथ रहते हैं और गांठ बढ़ती है, फिर उसके बाद हम सहेलियों से पूछते हैं और कोई बोल देता है अरे नहीं यार ये तो नॉर्मल है। उसके बाद फिर हम डॉक्टर गूगल के पास पहुंच जाते हैं, और गूगल खोलने पे हमारी आंखें
सिर्फ वही देखती हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। और हमारा मन क्योंकि ये कहना चाहता है कि मुझे कैंसर नहीं है, तो ब्रेस्ट की गांठ बढ़ती रहेगी, पर आपका मन आपको कहता रहेगा नहीं नहीं ये तो कैंसर नहीं है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड that if you have a lump in the breast, if there is any problem in the breast, you have to get yourself checked in time. And ये जो स्लाइड एक है, ये मैं हमेशा दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज सैडली ये हमारी कंट्री का जो इस वक्त जो सैड सिनेरियो है वो बताती है। आप ये देखिए इंडिया को, 5-year breast survival, cancer survival rates are only 52%, whereas in the US there are 90%. इसका ये मतलब है कि इंडिया में अगर किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो only 1 in 2 are going to survive at the end of 5 years, whereas in the US 90% will be alive at the end of 5 years. इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान को बाहर के लोग ज्यादा प्यारे हैं और इंडियन लेडीज प्यारी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया में इलाज नहीं है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि अगर आप समय पे अपने डॉक्टर के पास नहीं आएंगे, इफ यू डू नॉट रीच योर डॉक्टर इन टाइम, देन नो अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट कैन हेल्प। And because patients late आते हैं, because patients come late, the total breast removal rate is also much higher. Ladies को अपनी पूरी breast खोनी पड़ती है, which for women is a sense of their identity. Also, another thing I want you to see on this graph is that young breast cancer, 40 के अंडर ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में ऑलमोस्ट 17% है, as opposed to only 6% in the Western world. Now, this is very important to understand, क्योंकि यंग गर्ल्स में अगर ब्रेस्ट में कोई लंप होता है तो बहुत बार आपका जनरल प्रैक्टिशनर, आपके गायनेकोलॉजिस्ट, आपके लोकल डॉक्टर भी इसको मिस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते यंग गर्ल्स में ब्रेस्ट कैंसर। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कैंसर किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज पे हो सकता है, और अगर आप सतर्क हैं तो आप समय पे डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैंसर का पूरा पूरा इलाज समय पे पकड़े जाने पे जरूर होता है। एंड if that is the only one message you all take from this talk, is that early detection is important. I know I'm going to be talking about signs of early breast cancer turning into metastatic breast cancer, but I really hope that whoever is listening to this will not wait to get an early breast cancer and then wait to tick the box to see, अरे ये तो अब बढ़ रहा है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं। So please understand, early detection is extremely important. ये जो पहली स्लाइड है, इसमें जो सेंटर में डॉट है जिस पे मैं एरो रख रही हूँ, this is screen detected cancer, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कैंसर पकड़ा गया ऑन अ मैमोग्राम। इस टाइम पे स्टेज 0, स्टेज 1 पे पकड़े जाने कैंसर पे, जैसे मैंने बताया, 5 years पे 100% women are alive, which means it's very high survival rates. Cancer is not equal to death at this age. But वही अगर आप वेट करते रहें कि कैंसर एडवांस स्टेज बन जाए, तो despite all extensive treatments that you take, the chances of cure are much, much, much less. And sadly, at stage 4, cancer can become equal to death for most patients, not for all. But it is important to understand कि कैंसर को जल्दी पकड़ना चाहिए। अब ये एक थोड़ा क्रूड सा एग्जाम्पल है, एंड I hope my slides don't hurt the sensibilities of all of those who are listening, but I felt that प्यार से हमने बहुत समझा लिया। I think अब as NGOs working towards cancers, as doctors working towards cancers, we need to give a rude awakening. We need to show crude examples and make people understand. अब आप सोचिए, ये अगर एक सेब को चूहा कुतरना शुरू होता है, आप इस स्टेज पे उसको पकड़ लेते हैं तो फिर भी सेब का कुछ हिस्सा बच सकता है। बट इफ वी कीप वेटिंग, जैसे कैंसर भी ऐसे ही शरीर को धीरे 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 निबल करता है, एंड इफ वी कीप वेटिंग टिल द कैंसर निबल्स योर होल बॉडी बाय स्टेज 4, देन हम उसको इस स्टेज तक, पहली स्टेज तक नहीं पहुंचा सकते। सो अर्ली डिटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सो सोचिए कि आपकी ब्रेस्ट में एक गांठ है, इस गांठ को आपने देखा, आपने अपनी फ्रेंड से पूछा, उसने कहा कोई नहीं यार ये तो दूसरी गांठ है। आप थोड़ी देर रुकी और वो थोड़ी और बढ़ गई, आपको अभी भी लगा नहीं नहीं ये कुछ नहीं होगा, आप और रुकी और वो गांठ और बढ़ गई।
बढ़ते बढ़ते वो गांठ इतनी बढ़ गई कि अब आपकी ब्रेस्ट में जो एक चावल के दाने से गांठ शुरू हुई थी, जो कि मैमोग्राम, स्क्रीनिंग मैमोग्राम पे पकड़ी जा सकती थी, फिर वो एक छोटे मटर के दाने जितनी बनी, जिसको आप या आपका डॉक्टर पकड़ सकते थे, पर आपने उसको बढ़ते बढ़ते एक छोटी गोल्फ बॉल के साइज का बना दिया। उस टाइम तक ये गांठ जो है बगल में, ये जो नीली आपको देख रहे हैं गोले, ये वहां तक फैलनी शुरू हो जाती है और लेट स्टेज बन जाती है। तो कोई भी गांठ का ब्रेस्ट में साइज में बढ़ना, बगल में कोई भी गांठ का फील होना जो बढ़ रही है, ये खतरे का लक्षण हो सकता है और इसमें चेकअप कराना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे ही अगर आपकी ब्रेस्ट पे कोई घाव है, स्पेशली निपल पे, जो ठीक नहीं हो रहा, यू हैव गॉन टू अ डॉक्टर, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ने कोई क्रीम दी, थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो गया, पर वो घाव बार बार बन रहा है, तो प्लीज अंडरस्टैंड यू मस्ट गो टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट टू गेट इट चेक्ड आउट, बिकॉज इट कुड बी कि आप एक छोटे कैंसर से निपल के नीचे शुरू हुए, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते एडवांस स्टेज में जा रहा है। ऐसे ही कई बार कैंसर अगर समय पे नहीं पकड़ा जाए तो वो संतरे की स्किन जैसा अपीयरेंस ब्रेस्ट पे करता है, जिसको हम प्यूडी ओरांज बोलते हैं। अब इट विल बी वेरी, इतनी छोटी थी, वो तब तक रुके कि वो बढ़ते बढ़ते ऐसे बन गई कि वो यहां तक पहुंच गई। पर प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, दर्द होना is not a criteria for going to your doctor. Please go to your doctor at the earliest. It is very important. Increase in size of the lump, lymph nodes in the armpit, orange peel appearance of skin of the breast, और नॉन हीलिंग अल्सर्स, इनमें से कोई भी साइन आपको ब्रेस्ट में लगे तो प्लीज गो टू योर ऑन्कोलॉजिस्ट एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड आउट। आई नो हम ऑन्कोलॉजिस्ट से सब लोग बहुत डरते हैं, हम इतने डरावने भी नहीं है, समय पे आ जाओ तो हम मदद भी करते हैं, इतने डरावने हम नहीं हैं। सो इसीलिए कभी भी कुछ लगे, प्लीज मेक श्योर, yes, your gynecologist is your first friend, but make sure if there are any doubts in your mind regarding any symptom in your breast, you must seek out an oncologist and get yourself checked out. अब कैंसर क्या होता है? कैंसर बेसिकली आपके अपने सेल्स की ओवरग्रोथ है और ये बहुत भूखा होता है। जैसे ये बढ़ता है, ये ब्लड वेसल्स, ये जो लाल नलियां आ रही हैं, ये ब्लड वेसल्स को अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाता है। जब तक तो ये उस ऑर्गन में है जहां से ये शुरू हुआ है, तो इसको हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। बट अगर इसको समय पे ना पकड़ा जाए तो धीरे धीरे ये कैंसर के सेल आपके ब्लड सप्लाई में जाना शुरू हो जाते हैं। एंड वंस दे लीक इनटू योर ब्लड वेसल्स, दे कैन गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, and that is when it becomes advanced breast cancer or metastatic breast cancer. तो आप ये सोचिए कि आपके घर में दीमक लगी थी और आपने वेट किया कि घर के सब दरवाजे खराब हो जाएं तो हम दरवाजा बदलेंगे। That is exactly the scenario with cancer. जैसे ही आपको थोड़ा सा शक हो, उसका इलाज कराइए, क्योंकि जब ये सेल्स फूट के आपकी ब्लड सप्लाई में जाना शुरू हो जाएंगे, उस टाइम पे बहुत बार डॉक्टर्स के हाथ से भी बात आगे निकल जाती है। अब मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर का क्या मतलब है? मेटास्टैटिक मतलब कि वो ब्रेस्ट तक सीमित नहीं रहा है, वो ब्रेस्ट से निकलकर आगे चला गया है। अगर वो आपके लिवर में चला गया है तो उसमें सिम्टम्स हो सकते हैं थकान के, वेट लॉस के, भूख नहीं लगने के। अब देखिए, ये चीजें बहुत बार कॉमन भी होती हैं, तो बहुत बार हम अपने कैंसर पेशेंट्स जो ठीक हो गए होते हैं उनको बोलते हैं कि थोड़ा सा वेट लॉस, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो आप परेशान मत हो जाइए कि ये मेटास्टैटिक हो गया। बट इफ एनीथिंग इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, कि आप अपना नॉर्मल रूटीन जी रही हैं पर आपका वजन कम हो रहा है, आपकी भूख कम हो रही है, यू मस्ट अप्रोच अ डॉक्टर। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर बोन में फैल सकता है और बोन में फैलने से बोन्स में पेन होती है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत से पेशेंट्स जिनका ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हो चुका है, उनको हम लोग ऐसी दवाइयां देते हैं जिनसे वैसे भी बोन्स में पेन रहती है। सो बट इफ देयर इज एनी न्यू सिम्टम दैट यू हैव, और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर दर्द ज्यादा हो रही है, तो बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, प्लीज गो टू अ डॉक्टर एंड डू नॉट सेल्फ डायग्नोज। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर लंग्स में फैल सकता है, फेफड़ों में फैल सकता है। तो जब तक तो ये ब्रेस्ट तक सीमित था,
ये स्टेज 1, 2, 3 तक हम इसका इलाज डिफरेंट तरीके से करते हैं, पर वंस इट बिकम स्टेज 4 और ये बोन्स, लिवर, लंग में जाए, तब इसका इलाज क्यूरेटिव ना होके पैलिएटिव के नाम में आता है. But I want to tell any patient who is listening and is stage 4, all is not always lost. We see so many beautiful miracles of even stage 4 cancers doing well with good treatments nowadays. But it is important, अगर आप समय पे पकड़ लें तो उसमें आगे जाके दिक्कत होने की प्रॉब्लम जो है वो कम होती है. एक ये स्लाइड में जरूर दिखाना चाहूंगी. बहुत बार क्या होता है कि जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर की स्लाइड है और इसमें पेशेंट को इन्फेक्शन है और ये दोनों बहुत एक जैसे दिखते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर इन्फेक्शन में मिस डायग्नोज होके एज एन इन्फेक्शन ट्रीट होता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज एनीथिंग, अगर आपको खुद को लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं हो रही है और मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और ठीक नहीं हो रही है, तो you must get an oncologist to see you. The next few slides I'm going to share are not very pretty slides. And I apologize, or actually I shouldn't apologize for sharing them. Because every time I see a woman like this in clinic, I feel like crying out. Because cancer, if detected early, can be treated. And alternative methods of treating, I know, work well to lift your body towards a good healing state. But as far as I know, they cannot be the only treatment. जैसे एलोपैथी अकेले आपको ठीक नहीं कर सकती, आपको और भी बहुत सपोर्टिव चीजें चाहिए अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ऐसे ही खाली होम्योपैथी और खाली आयुर्वेद से आप ठीक नहीं हो सकते. And I'll show a few slides which I don't know how you guys will take. But this was a patient who kept thinking कि मैं होम्योपैथी की दवाई खा रही हूँ और डॉक्टर कह रहा है कि कैंसर ठीक हो रहा है क्योंकि अब ये फूट के बाहर आ रहा है. ये फूट के बाहर नहीं आ रहा, ये बढ़ चुका है, ये स्टेज 4 में परिवर्तित हो रहा है. कोई भी कैंसर में घाव बनना ऐसा या ऐसा नॉर्मल नहीं होता. और जो लास्ट स्लाइड में दिखाने वाली हूँ, I remember I haven't slept for days after seeing this patient because she was a professor in a college और वो ये सोचती रही कि breast का ऐसे होना normal है. I know I might have hurt a lot of sensibilities by showing this. I am full of hope, as Rekha ji said, but when I see this, I feel sad. So please, it is a big request to anybody who is listening. Please understand that just knowing it is not enough. Please pass on the message that you must find cancer before it finds you. And I'm so hopeful that we all are working towards this. And I'm hoping that at least in my lifetime, I will not have to stand on a world stage and say कि India में cancer सिर्फ late stage पे ही आता है. That is the end of my talk here. And I will just stop sharing the screen, Rekha ji, and I will let you take on from here. Is somebody, Rekha ji, Renuka ji, anybody? Rekha ji, you're muted. Renuka ji, you're muted. Yes, thank you, Dr. Kanchan, for such an informative and still interesting talk that you have given us. यहाँ से हमें एक मैसेज आया है कि हम सबको इंग्लिश में बोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जो शायद इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह बात को नहीं समझ पाते, तो हम इसीलिए इंग्लिश हिंदी मिली जुली भाषा में बोल रही थी इसीलिए. हाँ, बिल्कुल. तो डॉक्टर देव का स्वागत है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ गए हैं IRCH से. लेकिन उससे पहले अभी क्योंकि डॉक्टर कंचन कौर ने मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर पे बात की, हमारे साथ एक बहुत ही बहादुर लड़की जुड़ी हुई है, गायत्री सहगल, देहरादून से, जो कि मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट है. और वो इतनी बहादुर है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ. तो उनके लिए मुझे 2 पंक्तियां मिली हैं कि बड़ी मुश्किल घड़ी है जो मुझ पर आन पड़ी है, सच पूछिए तो मेरी जिद भी बहुत अड़ी है. आंधी, बरखा, लू, थपेड़े सबसे लड़ रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं हार कर भी जीत रही हूँ. इनकी बहादुरी की बात क्या करूं कि 18 वर्ष की आयु में
इनका एक्सीडेंट हुआ फायर के साथ, 50% बर्न्स के साथ ये पैदल चल के हॉस्पिटल गई अपना इलाज करवाने। इनकी उंगलियां जुड़ गई, इनका नीचे का होंठ गल के इनके चिन के साथ चिपक गया। बहुत सारी सर्जरीज के बाद ये सारे इनके जो फिंगर्स खोली गई, इनके लिप को ठीक किया गया, इनके पैरों को ठीक किया गया। और इस वहां जब ये गई तो इन्होंने देखा कि जिनको 5% बर्न है उन्होंने भी पढ़ना लिखना छोड़ दिया। लेकिन इनकी डिग्रियां सुने तो हैरान हो जाएं कि ये बीएससी हिंदी और सोशियोलॉजी में एमए, एनटीटी, बीएड, एमएड, यूजीसी नेट क्वालिफाइड, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और इतनी सर्जरीज के साथ साथ ये पढ़ती रही हैं। हालांकि कई बार ये खुद पढ़ नहीं पाती थी, जो क्लास में सुना उसकी बेस पे ही पेपर दे आती थी। और इनको फोटोग्राफी का शौक है, 2 बार फोटोग्राफी में ये फर्स्ट सेकंड प्राइज ले चुकी हैं और इनको बेस्ट टीचर का भी अवार्ड मिला है। ये एक न्यूज़पेपर की एडिटर भी रही हैं। ये बीएड कॉलेज की प्रोफेसर थी, लेकिन बाद में इनका एक्सीडेंट हुआ, इनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हुए, फिर उसके भी बहुत ऑपरेशन हुए। फिर इनको जब कैंसर हुआ, जिसकी ये स्टोरी सुनाएंगी, तो फिर अस्पतालों के चक्कर काट रही थी, तो इनके कॉलेज वालों ने मदद की और इनको नर्सरी क्लासेस दी ताकि ये अपना इलाज करवा सके। तो जिस बहादुरी से ये जूझ रही हैं और हमेशा हंसती रहती हैं, तो मैं इनका स्वागत करूंगी। गायत्री सहगल जी, प्लीज आइए और कैंसर के साथ अपना अनुभव हमको सुनाइए। गायत्री जी, गायत्री जी खुद को अनम्यूट करें। गायत्री सहगल, गायत्री जी आर यू देयर? गायत्री जी हैं? गायत्री जी क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? गायत्री सहगल अभी तो थी थोड़ी देर पहले यहीं पे। गायत्री आ रहे हैं? हाँ आ रही है। हाँ हेलो हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, मैं गायत्री सहगल और देहरादून से। रेखा मैडम आपको मेरे बारे में सब बता चुकी है ऑलरेडी, तो अब मैं आपको तब बताऊंगी जब मुझे मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हुई। मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी सितंबर 2013 से थोड़ा सा पहले, और मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था एम्स में 5 सितंबर 2013 में। उस समय मेरे को डॉक्टर शुक्ला की टीम ने मेरे को इलाज दिया, उनकी टीम ने मेरे को ट्रीट किया। और मेरी उसके बाद डॉक्टर शुक्ला की टीम में डॉक्टर पलनी अप्पन थे। डॉक्टर पलनी अप्पन इस समय वो बेंगलोर में रामैया मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और डॉक्टर अजय गोगिया, इन्होंने मेरी कीमो प्लान करी है, और उनकी टीम ने, डॉक्टर बत्रा ने मेरी कीमो प्लान करी थी। मेरी 6 कीमो हुई है। जनवरी जो मेरी चली थी, अक्टूबर 2013 से चली थी और जनवरी 2014 में पूरी हुई। इस दौरान बहुत परेशानियां होती थी। कीमो के दौरान जो आपको पता ही है, बहुत सारी परेशानियां होती थी, प्लेटलेट्स कम हो जाते थे। पर इस दौरान मेरी डाइट का मेरे पापा मम्मी ने बहुत ख्याल रखा। मेरे पापा बुजुर्ग हैं, पर फिर भी वो बहुत दौड़ भाग करके मुझे जूस देना, 3-4 बार टाइम पे जूस देना। मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा रहता था, मेरे प्लेटलेट्स अच्छे रहते थे। वो सब उनके कारण हुआ, पापा के कारण। और मेरी छोटी बहन सावित्री, वो मुझे हॉस्पिटल लेकर आती थी। वो मुझे हॉस्पिटल लेकर आती थी। सावित्री उसके साथ में हॉस्पिटल आती थी देहरादून से दिल्ली। मेरी 6 कीमो हुई थी और 14 फरवरी 2014 में मेरा MRM हुआ था। उसी दौरान मैं रेखा मैडम आपसे मिली थी। आपने मुझे बहुत, मतलब मैं डरी हुई थी बहुत ज्यादा, तो आपने मेरे को उस समय बहुत समझाया था कि ऐसा होता है। मेरे पास बहुत सारे मेरे अंदर क्वेश्चन थे कि कैसे होगा, क्या होगा। मैं मोटी शेयर करी और आपने उनको सॉल्व किया ऑपरेशन से पहले। तो मेरी हिम्मत आई। फिर आपने भी बताया कि आप भी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, तो थोड़ी हिम्मत आई उस समय। मैं फॉलोअप्स में आती रही, पर एक सड़क एक्सीडेंट मेरा हो गया था 13 जून पे ही रही और मैं आ नहीं पाई फॉलोअप्स में। अक्टूबर 2015 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मतलब मेरी फॉलोअप सब कुछ सही था।
फिर अक्टूबर लास्ट और नवंबर शुरू में कह सकते हैं मेरे को रिकरेंस हो गया, घाव में रिकरेंस हो गया। तो पहले तो ये था कि ठीक हो जाएगा, हो सकता है मेरी स्किन बर्न के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हो, पर फिर जब वो ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर शुक्ला सर ने, जो एम्स के डॉक्टर शुक्ला सर है, उन्होंने मुझे बायोप्सी करने के लिए कहा। दोनों की बायोप्सी हुई। इसी दौरान उसी समय बोर्ड मीटिंग में डॉक्टर अजय गोगिया ने मेरी कीमो प्लान कर दी थी। पर हुआ क्या कि जब मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव आई, और जब पेट सीटी आया उसमें मेरे स्पाइन में, लंग में, सब जगह आ गया था कैंसर। समय मैं डॉक्टर पलनी से जा चुके थे इनसे, पर मैंने उन्हें अपनी रिपोर्ट व्हाट्सअप दी, वो मुझे शाम को मिलने आए। उन्होंने मुझे मैं उस समय बहुत हिम्मत हार गई थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी उस समय। और फिर डॉक्टर गोगिया ने जो कीमो प्लान करी थी, उन्होंने कीमो चेंज कर दी, फिर उन्होंने मुझे हार्मोन थेरेपी पे रखा है। अब अप्रैल 2016 या मई स्टार्टिंग से कहते हैं 2016 से मैं टेमोक्सिफेन पे थी। फिर उसके बाद 2 साल से सही रहा। पिछले साल अक्टूबर में प्रोग्रेशन हुआ, थोड़ा सा माइल्ड प्रोग्रेशन हुआ। फिर जो एम्स की टीम थी उन्होंने कुछ चीजें प्लान बताए। अब मैं उस पे एनेस्ट्राजोल पर हूँ इस समय मैं एनेस्ट्राजोल पे चल रही हूँ। और लॉकडाउन की वजह से मैं आ नहीं सकी थी, दिल्ली आ नहीं सकी थी, तो एक देहरादून के एक निजी अस्पताल में करा रही हूँ, जो एम्स की टीम के द्वारा ट्रीटमेंट बताया गया है। अब इसी दौरान मेरी मुलाकात जो रेखा मैडम से जो हुई थी, मतलब मैं जब भी आई वो मुझे अक्सर मिलती थी और मैं भी मिलती थी। रेखा मैम, मैं बिहार भी गई, वहां भी मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे जो ICS वाले थे, इंडियन कैंसर सोसाइटी वाले लोग हैं, इंडियन कैंसर सोसाइटी वाले लोग, वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे। शायद होली का त्योहार था और वो होली सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे थे। तो मैं देख के डर गई कि इतने छोटे बच्चों को भी दोबारा हो गया है, तो थोड़ी सी एक तरह से हिम्मत भी मिली। और इतने छोटे बच्चे जब कर सकते हैं तो थोड़ा मैं भी कर सकती हूँ, तो थोड़ा वहां से थोड़ा हिम्मत मिली। फिर वो इनके रेखा आंटी जो है मुझे हिम्मत देती रही, कैंसर सोसाइटी वाली, और मैडम जो हैं, और इन्होंने मैं देखती थी लोगों को जागरूक करती थी। अब जैसे वो चीजें करती थी तो फिर मैंने इनको कहा कि आप देहरादून भी आइए। देहरादून भी आई मैडम, इन्होंने टॉक्स ऑर्गेनाइज कराए मेरे कहने से, बहुत लोगों को हेल्प मिलती है। अब वो जैसे आसपास के लोग भी मुझसे पूछते हैं कैंसर है तो किसी को भी कुछ होता है तो आते हैं, तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि पहले चेक कराए, फटाफट मेडिकल फैसिलिटी लें, चेक कराएं, अपने आप डॉक्टर नहीं बने गूगल पे सर्च नहीं करें। तो मैं उनको वही सलाह देती हूँ। और मतलब एक तरह से वो, मुझे तो मालूम नहीं, पर सब लोग मुझे बोलते हैं कि गायत्री तू ना हमारे लिए मोटिवेशन है। अब ऐसा नहीं है कि मैं मोटिवेशन हूँ सबके लिए, मैं खुद भी बहुत दुखी होती हूँ, रोती हूँ अकेले में भी, पर क्या करूँ, जब सब लोग मुझे कहते हैं तो हिम्मत वाली है, तो उनके सामने हिम्मत बनानी पड़ती है, चाहे वो दिखाने के लिए बनानी पड़े, तो वो हिम्मत बनानी पड़ती है मुझे। अब क्या है कि इस दौरान के मतलब ये है कि इंडियन कैंसर सोसाइटी में देखती हूँ कि बहुत हेल्प करती है लोगों की, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग बहुत हेल्प करते हैं। और इसमें क्या है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे BEd ग्रुप के फ्रेंड्स, मेरी टीचर्स, मेरे GIC लखवाड़ के स्टाफ, मेरे GIC द्वारा के स्टाफ, और हमारे डॉक्टर हैं चंद्र प्रकाश फैमिली डॉक्टर, वो भी बहुत हेल्प करते हैं मेरे को, मतलब सपोर्ट। अभी भी जैसे मेरे वुंड में घाव है, मेरे ब्रेस्ट में घाव है, वुंड है, तो वो मतलब जाती हूँ तो मतलब उनसे दवाई, बेटाडीन या पट्टी वट्टी सब चीजें, ड्रेसिंग का सामान सब लेकर आती हूँ। और ऐसे करके तो क्या है कि मतलब अब डॉक्टर पलनी अपन तो मुझे जैसी मेरी रिपोर्ट आती है सबसे पहले तो मैंने व्हाट्सअप करती हूँ कि प्लीज बताइए आप मुझे, मुझे एक हिम्मत बन जाती है। वो हल्का सा भी कुछ बोलते हैं कि थोड़ा सा भी पॉजिटिव आता है तो मुझे हिम्मत बन जाती है, हाँ ठीक है मैं कर लूँ। और ये है कि बस आप सब लोगों का प्यार, और ये है कि उसने मुझे जीने की हिम्मत बनाए रखी है। मेरे मम्मी पापा हैं, और मैं आपको उनसे शायद शेयर कराना चाहूंगी कि मम्मी पापा से मिलाना चाहती हूँ आपको कि पापा मम्मी इतने वृद्ध हैं, पापा 76 ईयर ओल्ड हैं, तो वो जो हैं वो भी मेरी कैसे सहायता करते हैं। मेरे पापा हैं, मेरी मम्मा, ये मेरी सिस्टर, मेरी ये तो आती रहती है, आपको मिलती रहती है हॉस्पिटल में मेरे साथ। हाँ, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मैम बस। थैंक यू गायत्री, आपने सबके दिल को छू लिया लगता है। तो हम आगे बढ़े तो मैं थोड़ी सी एक सूचना हमारी इंडियन कैंसर सोसाइटी के बारे में दूंगी। अभी आपके स्क्रीन पे हमारी बैंक डिटेल्स आएंगी, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे रेणुका जी ने, ज्योत्सना जी ने बताया, हम मरीजों की मदद करते हैं दवाइयों में, ब्रा प्रोस्थेसिस में, इलाज में। उसके लिए धनराशि चाहिए
तो आप ये जो आपके सामने बैंक डिटेल्स आएंगी, इसका आप स्नैपशॉट ले लें। ये हमारे डोनर्स हैं, अभी जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये हमारा बैंक डिटेल्स है, इसका स्नैपशॉट ले लें। दिल खोलकर दान करें ताकि इंडियन कैंसर सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा दान करें ताकि हम लोगों की मदद कर पाए। और मैं अपने डोनर्स का भी धन्यवाद करूंगी, थैंक यू, कि उनकी सपोर्ट की वजह से ही हम ये काम कर पाते हैं। ये हमारे डोनर्स हैं, DLF, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, डॉक्टर लाल ओंकफेस नोवार्टिस, तो इन सबका भी धन्यवाद, थैंक यू। आगे बढ़ते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर देव को इंट्रोड्यूस कराने में, क्योंकि मेरी दूसरी जिंदगी देने में डॉक्टर देव का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इनको बहुत मानती हूँ, मेरे लिए ये भगवान है। कि मैं जब आई थी, मेरे भी हालात, मैंने भी जैसे डॉक्टर कंचन ने कहा पहले बहुत इग्नोर किया, 3 साल किसी को बताया नहीं, तो हालात खराब थे। तब डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर देव ने मेरा ऑपरेशन किया था और आज 22 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं पहले जैसी फिट और हेल्दी हूँ। आज मेरी एज 72 हो गई है, फिर भी मुझे लगता नहीं कि मैं इतनी ओल्ड हूँ। और मैं डॉक्टर देव के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। डॉक्टर देव प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी IRCH एम्स में, और वो हेड है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के भी। वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया के। वो ट्रेजरर हैं ब्रेस्ट सर्जरी इंटरनेशनल के। वो इंचार्ज हैं दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री के। मैं उनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं एक छोटी सी बात उनके बारे में कहूंगी कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट ऑफ सोफिस्टिकेशन। सादगी गरिमा की चरम सीमा है। ए गुड डॉक्टर ट्रीट्स द डिजीज एंड ए ग्रेट डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट विद द डिजीज। तो डॉक्टर देव न सिर्फ डिजीज का इलाज करते हैं, वो पेशेंट का इलाज करते हैं विद डिजीज, और उन्हें पूरी सेटिस्फेक्शन देते हैं, जैसे मैं सेटिस्फाइड हूँ। और लोगों में भी ये बहुत पॉपुलर है। तो मैं इनविटेशन दूंगी डॉक्टर देव को कि मैं आपकी सारी अचीवमेंट बता नहीं पाई, लेकिन आप बताएंगे अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, उनके सिम्टम्स और प्रिवेंशन। थैंक यू, वेलकम डॉक्टर SVS देव, थैंक यू। नमस्कार रेखा जी। एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन कैंसर सोसाइटी एंड कैंसर सहयोग, मुझे ये मौका दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया आपको ज्वाइन करने में। ये देखिए आपका ये हम लोग इधर आज इस मंच पे हैं आपके वजह से हैं। आपसे हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, और इतना मुश्किल टाइम जब चल रही है कोविड की टाइम, ऐसी टाइम में आप इस टाइप की प्रोग्राम शुरू किया है, सब लोग को जोड़ा आपने। ये ऐसी चीज़ देख के हम लोग को हिम्मत आती है और अच्छा काम करने का प्रेरणा मिलती है हम लोग की। तो आज मुझे एक आपने बोला कि डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे डेलीगेट्स है आज, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रिवेंशन, ये 2 चीज़ें हमें आज मैं बहुत ब्रीफली एक बार हाईलाइट करता हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी डेलीगेट्स के लिए, वो चीज़ हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरा स्लाइड्स आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए प्रिवेंशन, अभी गुलाबी चर्चा जो है सिर्फ आपके मंच पे नहीं, पूरा दुनिया में हो रही है। अभी देखिए ये ग्राफ में जो दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ जो दिखा रही है आपका ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में कैसा फैल गया। कुछ चुने हुए देश छोड़ के आपका पूरा अभी वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर हो चुका है आपका। ये सारे आपका दुनिया का नक्शा है, ये रिसेंट आंकड़े हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जिस तरह से फीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर हो चुकी है। और ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि ये जो पिंक जो हिस्सा है आपका दोनों में, ब्रेस्ट कैंसर कितनी, ऑलमोस्ट 1/4 आपका जो कैंसर है लेडीज में ग्लोबली ब्रेस्ट कैंसर है, और मोर्टेलिटी इज अराउंड 15%। बट एक अच्छी चीज ब्रेस्ट कैंसर का ये है कि ये आप देखें, अभी गायत्री जी का स्टोरी देखिए, रेखा जी का स्टोरी देखिए, कैंसर है, उसका नाम कैंसर है, डरावनी है, लेकिन इलाज के लायक है। ये एक ऐसी कैंसर है जो अगर समय पे पकड़ा जाए, सही इलाज हो जाए, क्योर जो है आपका बहुत हाई रेट्स पे होती है, बहुत अच्छा आपको क्योर कर सकते हैं। और पिछले 5-10 साल में आप देखेंगे जिस तरह की एडवांसेस आ रही है ब्रेस्ट कैंसर में, नई नई दवाई, जैसा आपको स्टेज 4 में भी आप देख रहे हैं आजकल मरीज 4 साल 5 साल 6 साल अभी बिना डिसीज की मतलब आराम से अपना जिंदगी आगे बढ़ा रही है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। बुरी चीज़ है, देखिए हर चीज़ का दोनों साइड होती है, हमें ये देखना कि अच्छी चीज़ क्या है और आगे बढ़ना है।
इंडिया में देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर, अजी मैं ब्रेस्ट कैंसर रजिस्ट्री का इंचार्ज हूँ। हम ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े पूरा इंडिया में उसका हिसाब रखते हैं हमें। अभी देखेंगे तो पिछले 10 साल में क्या हुआ कि आपका ब्रेस्ट कैंसर आपका 40% बढ़ोतरी हुई है 1990 एंड 2016 के बीच में। आज के दिन Sorry में to आपका interrupt करीब, you, sir. Sorry जी। to interrupt you. We can't see all your slides. Slide show नहीं हो रहा आपका. Next ओके slide. ओके, हाँ मैं अभी कर रहा हूँ रेखा हाँ. जी। अभी ठीक है? नहीं, अभी नहीं आ रहा. अभी स्लाइड शो पे है मेरा? नहीं, अभी सर आपकी 4 स्लाइड्स दिख रही हैं. हाँ, सर एक रिक्वेस्ट है, आप सर क्या कीजिएगा, जो आपकी पीपीटी है सर उसको ओपन करके फिर सर स्क्रीन शेयर के ऑप्शन को सर सेलेक्ट कीजिएगा, तो जो प्रेजेंटेशन आपकी ओपन होगी वो सर फिर स्क्रीन पे शेयर हो जाएगी। अभी क्या है कि आपका फोल्डर शेयर हो रहा है सर स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है, मैं अभी पावर पॉइंट क्लोज करके दोबारा ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर, उसके बाद सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा सर। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए। यस सर, अब सही है सर। अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है सर, हाँ थैंक जी, यू। हाँ जी, हाँ जी, माफी चाहता हूँ मैं। नहीं, तो ये आपका 1-2 स्लाइड दिखा के फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ये जो हाँ, गुलाबी चर्चा की जो बात कर रहा था मैं, ये हाँ, दुनिया हाँ, भर में हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, सबसे बिल्कुल। अभी ब्रेस्ट कैंसर का है, और ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े ये हैं। इंडिया की बात चल रही थी हमारी। इंडिया में अभी देखिए आज का 40% बढ़ोतरी हुई 1990 और 2016 के बीच में। ये अभी का रिसेंट हमने डेटा देखा कि इंडिया में 1990 में आप देखिए ब्रेस्ट कैंसर चौथी पोजीशन पे थी। अमॉन्ग विमेन इट वाज द 4th कॉमनेस्ट कैंसर। अब 2016 में बढ़ के ये आपका नंबर 1 हो गया आपका। तो ये 4 कैंसर आपका नीचे चले गए, उसके जगह ब्रेस्ट कैंसर आ चुका है। और ये भी रिसेंट आंकड़ा है। अभी हमने स्टेट वाइज ब्रेस्ट कैंसर की डेटा हमने निकाला है। हर स्टेट आपका भारत का देखिए, इधर सबसे ऊपर है ब्रेस्ट कैंसर, या पहली नंबर पे या दूसरी नंबर पे। ऑलमोस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया ब्रेस्ट कैंसर अब पहला या दूसरी नंबर पे आ चुका है। तो अगला आपका सवाल उठती है वो नेचुरल है कि ये क्यों हो रहा है हमारे। एग्जैक्ट रीजन अभी किसी को इतना डिटेल में पता नहीं, बट व्हाट हैज बीन नोटिस्ड इज द रैपिड वेस्टर्नाइजेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल्स जो हम लोग आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स डिलेड मैरिज, लेट एज एट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, बच्चे आपका कम हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, शादियां लेट हो रही है। वो ये सारी चीज़ आपका बॉडी की हार्मोन सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। और डाइट्स की आपकी चेंज हो रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। ये सारे फैक्टर्स आप देखेंगे आपका वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर क्यों इतना ज़्यादा है कि ज़्यादा उनके स्टडीज में दिखाया गया है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने में। उसके अलावा भारत में हमारी प्रॉब्लम्स है कि जैसा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, स्क्रीनिंग की प्रॉब्लम है। जैसा अभी कंचन जी ने बताया क्यों एडवांस कैंसर ज़्यादा आते हैं। तो ये सारे कारण हैं। तो इनको हमें कैसा हमें आगे जाके सुलझा है, तो उसी में आपका स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन की रोल बहुत बहुत महत्व होती है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है एक स्त्री को आपको ब्रेस्ट कैंसर होने में कारण जो आपका करते हैं। कुछ आपका रिस्क फैक्टर्स है जो आपके हाथ में है नहीं है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो होती है आपका फीमेल सेक्स, आपको पैदा होना है कि एज ए वुमेन, वो आपके हाथ में चेंज नहीं कर सकते। मेंस्ट्रुअल फैक्टर्स भी आपके हाथ में नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मेनार्की, मेनोपॉज, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक चेंजेस, कुछ आपका कोई जीन में प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ आपके हाथ में है नहीं है। बट ये सब रिस्क फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें ये सबसे हो सकती है। अब हम ध्यान देते हैं जो रिस्क फैक्टर्स जो आपके हाथ में है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप कैंसर की इंसिडेंस कम कर सकते हैं, कैंसर होने से आप रोक सकते हैं। ये फैक्टर्स होती है आपका रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स, जो बोलते हैं शादी थोड़ा जल्दी करें, पहला बच्चा भी थोड़ा 30 साल से पहले हो जाए आपका, तो बॉडी के हार्मोन चेंजेस अलग से होते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग करते रहें, ओबिसिटी अवॉइड करें। वजन बढ़ना आजकल आपका बड़े शहरों में देख रहे हैं, जिस तरह की जंक फूड, रिफाइंड फूड, हाई कैलोरी फूड, इस टाइप की खाना, आपका ट्रेडिशनल इंडियन खाना बहुत अच्छी है। अब धीरे धीरे आप देखिए कोई भी मॉल में जाएंगे, कोई भी शॉपिंग सेंटर जाएंगे, आजकल जो वेस्टर्न डाइट आ रहा है ये सब आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे बॉडी की आपका ओबिसिटी बढ़ रही है, और ओबिसिटी से आपका ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ जाती है। जेनेटिक्स की बात करते हैं, 2 पॉइंट्स आजकल काफ़ी
ज़्यादा जेनेटिक टेस्टिंग होती है। कोई भी आपका कोई ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट आती है, कोई भी अच्छा हॉस्पिटल जाती है, जरूर डॉक्टर ये विषय उसके ऊपर चर्चा चलती है कि जेनेटिक टेस्टिंग करना है नहीं करना है। सो इसमें बेसिकली आपका जनता के लिए यही बोलूँगा, जेनेटिक टेस्टिंग ये होती है कि आपका 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर जीन्स जो आपकी बॉडी में बोलते हैं, जो आपका जीन्स होते हैं, जिसके वजह से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका बॉडी का टाइप है, क्या क्या बीमारी होती है, ये सारी चीज़, ये कोर्स आपका फैमिली में चलती है, आपका माँ बाप से, आपका पेरेंट्स से आपका बॉडी में आती है। इस जीन्स में अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा आपका देखेंगे, ये नीला वाला पिक्चर में एक भी थोड़ा सा अगर गलत हुई है आपका कोड में, उसमें आपका रिस्क बढ़ जाती है कि कैंसर होने तक। सो 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर जीन म्यूटेशंस की वजह से होती हैं। और जो कॉमन आपका याद रखिए, 2 जीन्स याद रखना पड़ेगा, BRCA1, BRCA2। ये जीन म्यूटेशंस अगर किसी के ब्लड टेस्ट में या सलेवा टेस्ट में आती है, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले से आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस 70 से 80% है। आपका अगर ये ब्लड टेस्ट में पता चल गया आज के दिन आपका कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, लेकिन आपका ब्लड टेस्ट में ये टेस्ट पॉजिटिव आया, तो 70 से 80% चांस है कि आगे जाके आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। ये एक आपका एडवांसमेंट है। आजकल हम पहले से बता सकते हैं कि आपको 5 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है। सो ये शक कब करते हैं कि जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, कब आती है शक? नॉर्मली ये होती है कि किसी भी अगर लेडी को अगर ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम उम्र में हो रहा है, 30 या 40 साल में, ठीक है, और जब दोनों साइड की ब्रेस्ट कैंसर हो रही है, या एक फैमिली में आप देखेंगे, हम नॉर्मली देखिए हर डॉक्टर पूछता है आपका फैमिली में और किसी को ब्रेस्ट कैंसर है क्या, या ओवेरियन कैंसर है क्या। अगर आपका हिस्ट्री में है, 1 या 2 सदस्य को हुआ है कैंसर, तब आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि कोई ये फैमिलियल प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आजकल ये हर जगह आपका पब्लिसिटी हो रहा है, लैब्स आपको ऑफर कर रही हैं, डॉक्टर भी बोल रहे हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक टेस्टिंग कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। अवेलेबल आजकल इंडिया में आराम से मिल रहा है, बहुत सारे नॉर्मल लैब्स आपको जेनेटिक टेस्टिंग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये टेस्ट करने से पहले आप जरूर डॉक्टर से मिलके इसकी फ़ायदा नुकसान सब पता होना चाहिए। ये आम टेस्ट जैसा नहीं है कि कोई आपका हीमोग्लोबिन करा रहे हैं या किडनी फंक्शन करा रहे हैं, ऐसा चल के अपने आप मत कराइए, क्योंकि ये इनका काफ़ी सारे चीज़ आपको समझना पड़ेगा टेस्टिंग करने से पहले। ये टेस्ट होती है आपका, या मुंह से थोड़ा सलेवा लेते हैं या ब्लड टेस्ट लेके करा सकता है। कॉस्ट आजकल बहुत कम हो गया, 15,000 से 30,000 तक आपका ये टेस्ट आपका मिल जाती है जेनेटिक टेस्टिंग। 4 से 6 हफ्ते में आपका टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाती है। इसके बारे में क्या है कि अगर जेनेटिक टेस्ट आपको इतना ही बताती है कि आपका म्यूटेशन पॉजिटिव है कि नहीं, जीन में प्रॉब्लम है कि नहीं, उतना ही बताती है। ये नहीं बताएगी कि आपका कैंसर है या नहीं है, या कैंसर होगा या नहीं होगा, ये टेस्ट नहीं बताती है। ये इतना ही बताएगी कि आपका जीन में म्यूटेशन है। इसमें अब ध्यान से करना पड़ेगा, जब जरूरी है समझना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी भी सोच इतना हुई नहीं है कि इस टाइप की टेस्ट हम एक्सेप्ट करें। काफ़ी फैमिली में डरते हैं कि हमारा ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो हमारी लड़कियों की शादी कैसी होगी, सोसाइटी में हम लोग को लोग कैसा देखेंगे, क्योंकि इन फैमिली में कैंसर्स होती है। तो ये सब शंका आपका माइंड में आता है, तो ये सब समझना चाहिए। लेकिन इस टाइप का हमें ओपन माइंड से जाना चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या है। तो ये पता होने से आपका कैंसर आप रोक सकते हैं, होने से पहले रोक सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन। ठीक है, इसके लिए 3 तरीका है। ये आपका चेकअप अच्छा सा होता रहेगा क्योंकि जल्दी पकड़ में आ जाए। दूसरी चीज़ है, हम आजकल प्रोफिलैक्टिक सर्जरी जो बोलते हैं, उसको आपका कैंसर होने से पहले ही आपका ऑपरेशन किया जाता है। आपका एंजेलिना जोली का फोटो इसलिए दिखाया मैंने, तो उन्होंने कैंसर डेवलप होने से पहले ही ऑपरेशन करा लिया कि होने से रोक सके। ये एक ऑप्शन है, आजकल हम एम्स में इसको ऑफर कर रहे हैं। तो सही मरीज अगर आता है तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। और कुछ केसेस में हम कुछ दवाई यूज करते हैं कि कैंसर डेवलप नहीं हुई। तो प्रिवेंशन की बात है हमारे पास। मोटे मोटे तौर पे प्रिवेंशन मतलब क्या है कि आपको होने से रोकना। सबको पता है कि कैंसर हो सकता है, कैंसर अगर रोक सकते हैं तो क्या क्या साधन है आपके पास आज के दिन में, क्योंकि हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये सब इलाज कराने की जरूरत नहीं है, इतना परेशानी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ साधन है, ब्रेस्ट कैंसर आप प्रिवेंट कर सकते हैं। हर कैंसर आप रोक नहीं सकते, बट कुछ प्रिकॉशंस लेके कुछ कैंसर्स आप अपने हाथ में है कि आप रोक सकते हैं। प्रिवेंशन में क्या आता है कि आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जो अभी चीज़ें हमें बताया, कुछ फैक्टर्स के वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ती है, वो लाइफस्टाइल थ्रू आप अपने सुधार लाएं।
ये धीरे धीरे होती है, अचानक आदमी अपना आदत बदल नहीं सकता है। अपना समझना पड़ेगा कि इसलिए मेरे नुकसान हो रहा है, मैं कैसा इसको प्रिवेंट कर सकता हूँ। काफ़ी विल पावर चाहिए, लेकिन ये सब संभव है। सेकंड कीमो प्रिवेंशन, तीसरा सर्जरी, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योंकि अगर हो चुका है, स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन बोलते हैं। स्क्रीनिंग मीन्स कोई आपको सिम्टम है नहीं है, आप नॉर्मल औरत है, घर का रूटीन काम कर रहे हैं, लेकिन मन में शंका है कि मेरा कैंसर तो नहीं है, तो कैसा पता चलेगा? उसमें जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग। इससे फायदा क्या है कि कैंसर आपका शुरुआत की स्टेज में, जैसे डॉक्टर कंचन कौर जी ने बताया कि बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ में आता है, जब आपका कोई गिल्टी नहीं है बॉडी में, आपको कुछ फीलिंग ही नहीं हो रहा है, बट उसी स्टेज में आपका मैमोग्राफी या कोई भी टेस्ट आपको बता देता है कि कैंसर शुरू हो गया है। उस टाइम अगर पकड़ में आता है, आपका क्योर करने का चांस ऑलमोस्ट 90% से ऊपर चली जाती है। सो लाइफस्टाइल्स के बारे में बात करते, क्या क्या आप लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं जिसके वजह से आपका कैंसर रिस्क कम हो जाए। फिजिकल एक्टिविटी आप देखिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, रूटीन काम। आजकल हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल देखेंगे, घरों में बड़े बड़े सोफा, बड़े बड़े टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इनसे क्या है कि आदमी की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जा रहा है, सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। सो इसमें फिजिकल एक्टिविटी कम होता है। नेचुरली आपका घर का काम, रूटीन काम आप करते रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। इंडियन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल देखेंगे, औरत आपका जो घर में काम करती है, उससे क्या है कि आपका बॉडी का नॉर्मल एक्टिविटी कंटिन्यूस ही रहती है। आजकल क्या है कि हम घर में रूटीन काम कम कर दिया, लेकिन कैलोरी बर्न करने के लिए फिर हम अलग से जिम जाते हैं। तो मेरा ये है कि जस्ट एक सजेशन है कि आप अपना रूटीन घर का काम मशीन के ऊपर कम डिपेंड करें, अपने आप करते रहें। बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी घर में रूटीन काम में हो जाती है। हाई आपका डाइट्स जो है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए। अल्कोहल एंड स्मोकिंग बिल्कुल ही कम होना चाहिए, और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसमें जो विटामिन्स होती है, ये आपका कैंसर रिस्क कम करता जाता है। कीमो प्रिवेंशन में 1-2 ड्रग यूज़ करते हैं, जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन में हमें 1-2 ड्रग्स, जैसे टोमैक्सिफेन जो कैंसर में यूज़ होती है, वो प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये दवाई देने से करीब 50% ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क आपकी कम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है आपका रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी जो बोलते हैं। इसमें आपका ऑपरेशन जो है कैंसर होने से पहले ही आपका होती है, जिसका आपका जीन में म्यूटेशन है। इस पर आपका ऑपरेशन करके आपका टोटल ब्रेस्ट रिमूवल हो जाती है। अगर उस लेडी अगर सोशली एक्टिव है तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, नया ब्रेस्ट आपकी बन सकती है। ये टेस्ट और ये वाला ऑपरेशन अभी हमें एम्स में शुरू किया पिछले 4-5 साल से। कुछ जैसे फैमिली आ रही है, एक सिस्टर को कैंसर हो गया, दूसरा सिस्टर को डर लगता है, 2 सिस्टर को कैंसर हो गया तो और 2 सिस्टर है, उनको शक आ रहा है, तो वो जरूर जेनेटिक टेस्ट के लिए जा सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर म्यूटेशन आया, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उन लोगों को आजकल हम कैंसर होने से पहले ही हम इलाज ऑफर कर रहे हैं, और उसमें 90% आपका चांस है कि आगे कैंसर नहीं होगा। दूसरी ऑप्शन है, आप ये ऑपरेशन के लिए नहीं जाना चाहते हैं या आपको दवाई नहीं लेना चाहते हैं, तो आपकी दूसरी होती है कि रेगुलर चेकअप पे रहिए। थोड़ा ज़्यादा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी आपका पिकअप हो जाए। ठीक है। स्क्रीनिंग के बात है, ये आमतौर पे आपका हर जगह देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। इस पे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मोटे तौर पे 3 चीज़ें होती है स्क्रीनिंग में। एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन बाय क्लिनिकल बाय ट्रेन्ड मेडिकल वर्कर, तीसरी होती है मैमोग्राफी। ये 3 टेक्निक्स में आपका क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें मैं बताता हूँ, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट अवेयरनेस। हर औरत को अपना नॉर्मल ब्रेस्ट के बारे में उनको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्रेस्ट मेरा कैसा है, मेरा बॉडी पार्ट में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। उनका अपने आप फील करके, देख के शीशे में या नहाते टाइम अपने आप को महसूस करना चाहिए कि नॉर्मल क्या होते हैं। नॉर्मल जब आपको पता चलेगा, तभी भी आपको एबनॉर्मल क्या होती, तब आप जल्दी पकड़ पाएंगे। तो अपना अपना पहचानिए, अपनी बॉडी को पहचानिए, अपने नॉर्मल ब्रेस्ट को पहचानिए। इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट अवेयरनेस। सो हर औरत को ये आपको कम से कम 20 साल 25 साल के बाद अपने आप अवेयर होना चाहिए कि मेरा नॉर्मल ब्रेस्ट कैसा फील करता है। आप छू के देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, किस टाइप की स्किन ने क्या है, अपना शीशे के सामने खड़े होकर देखिए। और कभी भी बीच में महीने 2 महीने में एक बार देखते रहेंगे, कोई भी आपका मेजर चेंज आता है, आप तुरंत आप पकड़ सकते हैं। आप अपने ब्रेस्ट के बारे में ध्यान नहीं देंगे, अगर आपको उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, कभी आपको मतलब चेकअप ही नहीं करना चाहेंगे अपने आप, तब आपका मिस हो जाती है। ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी में मुश्किल है, क्योंकि घरों में छोटे छोटे घर है,
बहुत सारे सदस्य रहते हैं कि औरत को टाइम नहीं मिलता है, ना जगह मिलती है, ना प्राइवेसी मिलती है कि कौन सी टाइम में जाके इस टाइप की चेकअप करें। तो एक बेस्ट उपाय होती है कि आपका नहाते टाइम सबसे बेस्ट है, एक शीशा रखिए बाथरूम में, नहाने के टाइम अपने आप एक बार चेक कर लें, तो आपको पता चलता है कि मेरा नॉर्मल ब्रेस्ट क्या है और कोई प्रॉब्लम है तो पकड़ना कैसा है। इसको बोलते हैं हमें ब्रेस्ट अवेयरनेस। ये सबसे ज़रूरी है, इसके वजह से आपका कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ना आसान हो जाती है। सेल्फ एग्जामिनेशन जो है अपने आप करना चाहिए, ये अलग अलग पोजीशन में होती है, और जैसे नहाते टाइम आप चेक कर सकते हैं, एक तो देख सकते हैं, दूसरा आपको फील कर सकते हैं कि कोई गठान या गिल्टी तो नहीं फील हो रहा है आपका ब्रेस्ट में, और खड़े होके हाथ उठा के देखिए कोई ब्रेस्ट की साइज या शेप में चेंज तो नहीं आ रहा है। उसके बाद लेट के भी अपना बेडरूम में देख सकते हैं, हाथ का ये तरीका दिखा रहा है, ये फोटोग्राफ की किस टाइप का आप फील करना चाहिए। हमेशा आपको फ्लैट ऑफ द हैंड, तभी आपका कोई भी छोटा गिल्टी पकड़ में आ सकती है। और किस चीज़ के लिए देखेंगे आप, अगर किस चीज़ में ध्यान देंगे कि कोई भी नई गिल्टी आ रही है ब्रेस्ट में, निपल में कोई फ़र्क आ रहा है, निपल से कोई डिस्चार्ज आ रही है जो खून जैसा, स्किन में कोई चेंजेस आ रहा है, या निपल अंदर सुकड़ रही है, ये 4-5 वार्निंग साइंस होती है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का। इसका ध्यान रखना होगा। ये बहुत आसान है, इसमें खर्चा कुछ है नहीं है, 5 मिनट लगती है आपको घर में, अगर हैबिट कर लिया आपने करने में। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यही चीज़ जो है, एक हम हेल्थ वर्कर को ट्रेन करके घर पे जाके भेज के कराते हैं, इसको बोलते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। मैमोग्राफी जो है सब जानते हैं, ये बहुत आपका वाइडली यूज होती है। बेसिकली ये एक स्पेशल टाइप की एक्सरे है, ब्रेस्ट का किया जाता है, स्पेशल मशीन होती है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। इसमें ब्रेस्ट का एक्सरे करा जाता है, और इसमें आपको पता चलता है कि शुरुआत की कैंसर जो आपको पकड़ सकते हैं कि नहीं। इस टाइप की जो एक्सरेस अलग अलग टाइप की ब्रेस्ट होती है, तो इसमें कोई भी अर्ली कैंसर अगर आएगा तो पकड़ने में आपका ये मदद करती है। इसकी ये है कि इंडिया में इतना वाइडली क्यों नहीं कर पा रहे हैं मैमोग्राफी, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, आपका मशीनें चाहिए, और उसको पढ़ने वाले अच्छे डॉक्टर भी चाहिए, नहीं तो इसमें आपको मिस हो सकता है कैंसर। और दूसरी ये चीज़ है कि देखिए, आप जैसे एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, अगर 1000 मैमोग्राम करेंगे औरत में जो नॉर्मल है, आप 2 से 3 कैंसर पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मतलब है कि 950 के ऊपर वो जो मैमोग्राम है हो रहा है, लेकिन उसके कैंसर मतलब उसमें है नहीं है। तो स्क्रीनिंग में ये है कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, सब औरत को आपको मैमोग्राफी करना है। वो हमारे इंडिया में संभावना नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है और इतनी मशीनें नहीं है, ना इतने डॉक्टर है आपको बताने के लिए। इसलिए हमें स्क्रीनिंग मैमोग्राफी तभी बोलते हैं जब किसी को हाई रिस्क है, फैमिली में प्रॉब्लम है, या कोई गायनी चेकअप के लिए जा रहे हैं, तब आप करा सकते हैं। और मैमोग्राफी का ये है कि इस पे भी कभी कभी छोटा कैंसर मिस हो सकता है। और नुकसान क्या है, कभी कभी कैंसर नहीं है बट कुछ चीज़ें आपको कैंसर जैसा दिखती है, तो आपका टेंशन बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि इसमें कुछ लग रहा है, शक है, तो फिर बायोप्सी के लिए जाना पड़ता है, फिर फाइनली पता चलता है वो कैंसर नहीं है। तो ये छोटे बहुत नुकसान है कि आपका कभी कभी आपका स्ट्रेस बढ़ती है, ज़्यादा टेस्ट कराना पड़ता है, बट ओवरऑल मैमोग्राफी अच्छी चीज़ है। जहाँ जहाँ आपका मौका है, जब भी शक है, आप ये टेस्ट करा सकते हैं। तो ये टॉक ख़त्म करने से पहले लास्ट स्लाइड मेरा यही है, ये प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा। ग्लोबल अब देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर नाउ कॉमनेस्ट कैंसर हो चुका है, इंडिया में भी अभी नंबर 1 पे आ चुका है। इसमें लेकिन डरने वाली बात नहीं है, ये सबको मिलके लड़ना है। अभी ये सिर्फ डॉक्टर्स का काम नहीं है, सोसाइटी है, सोसाइटी से NGOs जैसा आप जैसा लोग इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ये सबका आपका स्टेक होल्डर्स है इसमें। ब्रेस्ट कैंसर फाइट करना है, इट इज़ नॉट अ मेडिकल प्रॉब्लम, इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। सो ये सब मिलके आप अगर करेंगे, इसके चांसेस बहुत अच्छा है रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, अच्छा इलाज करने के लिए। कोई भी कैंसर ऐसा नहीं कि जितनी साधन आपको ब्रेस्ट कैंसर में है इलाज करने के लिए, बाकी कैंसर्स में इतना नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो जो अपने हाथ में जो है वो चीज़ आप जरूर शुरू करिए। लाइफस्टाइल चेंज करना है, ब्रेस्ट अवेयरनेस है, वो जरूर आप सीखिए कि मेरा ब्रेस्ट कैसा है, जल्दी मैं पकड़ पाऊँ अपने आप। और दूसरा है स्क्रीनिंग, जब भी जरूरत पड़ेगा डॉक्टर के पास जाइए, लेट नहीं करिए। कंचन जी भी अभी आपको ये सब बताए थे। इसके साथ मैं अपना टॉक खत्म करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन हमको दी। थैंक यू।
हाँ जी, आज मैं एक बहुत पेशेंट को एक पेश करना चाहती थी, वो भी डॉक्टर देव के ही पेशेंट है अगर मैं गलत नहीं हूँ, मिस्टर रियाजुद्दीन, शायद उनका असली नाम मिस्टर रियाज सलमानी है, सऊदी अरेबिया में है। उन्होंने शायद शुरू में इलाज सऊदी अरेबिया में कराया, फिर फाइनली सारा ट्रीटमेंट IRCH में कराया और वहीं मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और उनको मैं इसलिए बुलाना चाहती थी कि आप ये जाने कि पुरुष भी ब्रेस्ट कैंसर से अछूते नहीं हैं, पुरुषों को भी हो सकता है। लेकिन रियाजुद्दीन जी ने बहुत बहादुरी से इसका मुकाबला किया, परिवार का पूरा साथ दिया मिला और अब वो ठीक ठाक हैं और वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं। और हमारे अगले स्पीकर हैं मिस्टर प्रतीक टंडन, ये नोवार्टिस के रिप्रेजेंटेटिव हैं और नोवार्टिस हमारी बहुत पुराने साथी हैं, इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हमें ज्ञान भी देते हैं और धन भी देते हैं और हमें बड़ी खुशी है। मैं जानना चाहूंगी कि मिस्टर प्रतीक टंडन जी हैं क्या? Yes, I'm there. Okay, thank you, welcome and very happy to see you there. और आपके बारे में बहुत ज्यादा इसमें बताने लगूंगी तो टाइम की कमी है, लेकिन आप नोवार्टिस की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर के लिए बिजनेस फ्रेंचाइज हेड हैं और भारत के नोवार्टिस ऑन्कोलॉजी की लीडरशिप की टीम के मेंबर भी हैं। और प्रतीक जी SP जैन कॉलेज से MBA किए हुए हैं और बायोकेमिस्ट्री में MSc हैं। तो डॉक्टर प्रतीक जो है ये इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगे, क्योंकि और नोवार्टिस के लिए और टंडन जी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि तकलीफों में सफर आसान होता है जब नोवार्टिस जैसे लोगों का हमारे साथ मिलना होता है। धन्यवाद। ओवर टू मिस्टर प्रतीक टंडन। थैंक यू। Thank you. Thank you. At the outset, I would like to congratulate ICS team to convene this unique platform to discuss issues related to breast health overall. I'll say I work for breast cancer at Novartis, as you said, and would like to put forward some facts regarding breast cancer in India and abroad. I mean, doctors have already spoken and they have given you some facts, but then this is the biggest cancer in India today. 27% of all the cancers which are detected is breast cancer. And this has a very high mortality. I mean, mortality is around 12 to 15% in 2018. As Dr. Kanchan was also sharing, you know, that most of the women today are detected at very late stage. They are detected at stage 3 or stage 4 in India. And you know, that's approximately 50% of women which are detected at that stage. And at that stage, it becomes tough or difficult for survival. And that's why if we look at currently in India, 60% of the women have survival post-detection of cancer, which is very different from US, where it's approximately 90% survival post-cancer. It's, as I said, it's one of the most common cancers in India. And today we are seeing that from 30 years onwards, you know, a woman is at considerable risk for breast cancer. You know, and incidence peaks up at the age of 50 to 64. So it is highly important that we keep on doing self-breast examination and do mammography if possible and get the detection done early. Urban areas suffer a little bit more in India. We have 1 in 22 women who suffers from breast cancer at urban area, while in the rural groups, it's around 1 in 60. So it's a little bit better in rural areas. Cities like Bombay, Delhi, Bangalore, Kolkata, Chennai, Ahmedabad. In these places, if we look at women cancers, 25 to 30% cancers are only breast cancer, you know, and most of the women are getting detected between 25 to 50 years of age, which is far early versus best. So if, you know, doctors, Dr. Kanchan also talked about it, and, you know, I will also share that the biggest strength for us is that it's easy to detect early through self-breast examination, and early diagnosis and awareness will be the topmost priority for us, all the people who are engaged in war against cancer. If detected early, this has a very effective, you know, treatment options. This is possible to cure a person if detected quite early. The most important, I'll say, thing is to mainstream early diagnosis and awareness into our all existing healthcare initiatives.
involve ASHA workers, ANM workers, train them so that they can go and educate our women today about self-breast examination. This will reduce mortality as well as will improve referral to the tertiary care center for quick detection as well as treatment. Having said that, this is extremely important for me to not take away hope from women which are getting detected late. Late detection is not a death sentence today. In last couple of decades, companies like Novartis and other innovative companies have developed many targeted treatments which have helped women significantly improve their overall survival. The patients who are suffering from metastatic breast cancer also can live long today with the advent of new therapies. So having said that, I'll say there is a lot of opportunity for collaboration between companies, government, NGOs, and different societies to use the existing reach of healthcare programs and touch the lives of women and save them early. By this, I'll say thanks a lot, ICS team and all the people who have joined today to hear me. This is a wonderful initiative, and we should continue doing such initiatives. Thank you. Is there anybody from the ICS team? Yeah. Thank you so much, Mr. Pratik Tandon. And I'm very happy to tell all of you that Indian Cancer Society does this job. We have got a project in Vrindavan where we go from village to village and we involve the ASHA workers, the GRCs over there, the Sarpanch over there, and the head of the healthcare system over there to create awareness among the people of those villages. And this is at the beginning stage. Because of COVID, it has stopped for the time being. And I also want to congratulate you and be thankful to you that you have taken Indian Cancer Society to international scenario, where Indian Cancer Society is representing India at the advisory board of advanced breast cancer in the world, and so many countries are involved, and Novartis is supporting that project. So congratulations and thank you for that. Because of the lack of time, समय की कमी है, तो मैं रंजीत जी से कहूंगी कि वो सारे क्वेश्चन लिख के रखें। आपके सवालों के जवाब हम देंगे, बाद में आपके सवालों के जवाब आप उन्हीं से लेंगे जिनसे आप पूछ रहे हैं, और आपको हम पर्सनली बताएंगे, क्योंकि सवाल पूछने का वक्त नहीं है। तो मैं रुपिंदर जी को इनवाइट करूंगी, क्योंकि जो हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, जो हमारे स्पीकर्स हैं, जो हमारे डोनर्स हैं, उनके बिना हमारा ये वर्चुअल सेमिनार बिल्कुल ठीक नहीं होता। और रुपिंदर जी धन्यवाद करें। उससे पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी कि आप दिल खोलकर दान करें। हमारी जो आपके बैंक डिटेल्स, मैं समझती हूँ आपने स्नैपशॉट लिया होगा, नहीं तो आप हमसे डिटेल बैंक की लेके दिल खोल के दान करें, ताकि इंडियन कैंसर सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। सब लोगों की मदद करने के लिए आप लोगों की कोई तन से मदद करता है, कोई धन से, कोई मन से। आप सबका मन है यहाँ पर, तो कुछ लोग समय दे सकते हैं, कुछ लोग पैसा दे सकते हैं। तो जो लोग पैसा दे सकते हैं, प्लीज आप दिल खोल के दान करें, ताकि हम अपने मरीजों की मदद करें। और हम धन्यवाद है हमारे जो डोनर्स हैं, DLF, सिप्ला, नोवार्टिस, डॉक्टर लाल स्पैर, डॉक्टर रेड्डीज, ऑन्क्वेस्ट, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमेशा से कर रहे हैं, आज पहली बार नहीं है, हर साल और हर बार हमारे मदद करते हैं। इसके साथ ही मैं मैडम रुपिंदर कौर जी को इनवाइट करूंगी कि वो लोगों का धन्यवाद करें जो किसी भी रूप में हमारी मदद करते हैं। ओवर टू रुपिंदर कौर जी। रुपिंदर जी आप अनम्यूट करें खुद को। खुद को नहीं कर सकते, पीछे से होना पड़ेगा। रुपिंदर मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया, हाँ हो गया। Can you hear me? Yes. Yeah, you can. Okay. Like they say, कि time and tide waits for no man.
The same thing is the story of the Indian Cancer Society. We don't wait for anything. What we have to do, we just do it. And we go ahead with all our work, and nothing has stopped the Indian Cancer Society from doing its work, even in these very, very difficult times. For this, we have to thank all the people and their cooperation, especially the office staff, our volunteers, the doctors, and the corporates who have stood by us. It is a great privilege for me to thank all the people who have been here today. Firstly, I'll thank the doctors, Dr. Kanchan, Dr. Deo, and of course, Pratik Tandon for speaking with us. Our motivation speaker, of course, Madam Tahira, and we've had these survivors also who've spoken so well, Gayatri Sehgal, and unfortunately we could not have Riazuddin, but all the same, thank them all for being with us, and this is our first time that we've gone through this, and I hope we are more successful. Renuka, तुम्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, मेरे जैसा भी अनाड़ी को ये समझ आ रही थी ये क्या होता है। अनाड़ी है इस खेल में, सब अनाड़ी है, सब सीख everybody's cooperation, but office and Rekha and Renuka have all done a very excellent job. Now there are one or two things that have to be told to you. That the brochure will be released on the 30th, and it will be on our website. Is that correct? Yeah, absolutely correct. It's an ebook. Yeah. And our magazine, and this brochure has all the name of the people who have donated and advertised and everything. And our magazine, Nargis, that will be released on the 23rd on an e-platform. And that is also on our website. And all those who want to see that, they can have, go through with it. And I think we should not take any more time because we've had a long session. And I thank each one of you who came on, and Colonel Tomar and everybody in the office. I find them so helpful all the time. And like Kanchan had, sort of given the conclusion that find it before it finds you. Yeah, absolutely. That was a beautiful thing. Thank you very much, everybody. It was good to see all our colleagues and contemporaries and everything. Rekha ji, thank you. Thank you so much, all the participants, for participating and making it a huge success. More than 400 people came and went in between and all that. And it is happy, not because it is grand success, because so many people will take our message ahead in their own people. So it will, our knowledge, our information will be multiplied, and more people will be aware, and hope we will be able to win over breast cancer. So our Gulabi Charcha, the spectrum of breast cancer, stands to fight breast cancer. Thank you so much for joining us. Thank you. All the Gulabi ladies. Just before we conclude, I would just like to say one word on the team that has been working for this webinar. Yeah. There is the communication team that has been sending out all the messages. All. We have developed it, and it's all thanks to two sessions that they had, that we all had with the digital marketing team, which was able to instill in them how to contact, how to spread the message, and they have worked tirelessly. They worked on the doctors, as you must have seen, the COVID warriors who were portrayed, the survivors who were portrayed, Tahira Keshav's video which was made, and also Rekha, who kept giving her tips in between, plus the other healthy tips that kept coming in from the team together. So a hearty congratulations to the team, and I hope they will be motivated enough now to work for the next two webinars that are coming up on Wednesday, which is Swachh Vayu and Swasth Jeevan, dealing with the head, neck and the oral cancers and lung cancer and the pollutants of tobacco and environment, which contribute greatly to it. And our last webinar, which is on girls, let's start talking, let's get talking, which is to try and make the women aware of all the little gynae problems that they have, and they are very hesitant to talk to anyone about it.
They just keep it within themselves, and like Dr. Kanchan was saying, it gets too late by the time they actually come to the doctor. So these are things. Yeah. Looking forward to see you all on the 23rd and 30th. Kandra coming in and singing in the second webinar. That Yes. is cancers. Her mother died of lung cancer, so she will be talking about that as a caregiver to her. And in the last one, which is on the gynae cancers, we have Sonali Bhindre coming in and talking about her cancer and how she's fighting it. She's not over it, she's still fighting it. So it's going to be a really good sessions, both the sessions, at least I know apne muh miya mittu bol rahi hu main, but we hope that these sessions are also equally good as has been today's session. So I invite you all, please come in. You will be hearing from us. All of you who have registered will be getting the link for the next session also. And also information about the next session would start coming in and rolling in from tomorrow. Thank you so much for being with us today. Thank you ever so much. Thank you to all the speakers, Dr. Jo, Dr. Kanchan, Communication Sahidas. Colonel Tomar, who has been handling all this. Yeah. I know. Anuj, Bhagwan Das, and the office team. Bhagwan Das, Anuj, yes. And Priya Parmar is the one who is Priya Parmar, yeah. with Swati and Priya Tiwari in putting the whole thing together as the communication team. I hope I'm not left out anyone. All of the rest of the other staff also that's there, seeing that everything is put in place at the right time and at the right Thank you. We've Thank had you so much. challenges. We hope to overcome all of them in our next webinar. Thank you so much and a good night. Thank you.